Hi, Dr. Mini. Welcome to Voices of Care. I'm Hikeshta Vermani, a counseling psychologist, wellness expert, and a trauma-informed coach. I'm so excited to have you here today as a profession. First of all, thank you Hitashita for having me here with you today. Thank you. So, बहुत myths है related to mental health और stigma भी है. And psychiatrist के पास जाओगे तो दवाइयाँ मिलेंगी ही. This is also a very old concept. Really? Yeah, it does not hold true in today's scenario. कि आप उनको अपने तरफ से क्या बोलते हो regarding keeping good mental health? People will just give advice. Yes. It's a complete process. Yes. Let me give you a funny example. Yeah. Like I see teenagers also, right? Yeah. So parents आते हैं कि मैम इसको ये प्रॉब्लम हो रही है. हाँ. बच्चे का बिल्कुल हालत खराब हो रखी है. वो कुछ हाँ. नहीं कर पा रहे हैं. एंग्जाइटी चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है. क्लियरली क्लिनिकली डायग्नोजेबल डिप्रेसिव सिम्टम्स चल रहे हैं. एंड पेरेंट्स आर लाइक ये टाइम से उठता नहीं है, ये टाइम से वो नहीं करता है. ठीक है. सो मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, मेडिकेशन इज वन पार्ट ऑफ इट. Hi, Dr. Mini. Welcome to Voices of Care. I'm Hikeshta Vermani, a counseling psychologist, wellness expert, and a trauma-informed coach. I'm so excited to have you here today. I would first like to just ask you one question, which is that what drew you आपने psychiatry क्यों choose की as a profession? First of all, thank you Hitashita for having me here with you today. Thank you. So, if I tell you कि psychiatry क्यों choose किया, I think I was always drawn to the idea कि हमारा mind, brain कैसे work करता है. It has always intrigued me. So I think that is why I chose this. Like in my early days during my MBBS, we don't have much exposure of psychiatry. But as I reached to the final year, I started to realize कि oh, this is one of the subjects which like really resonates with me, and that is how I started my journey from there. I had an additional internship in MBBS also in psychiatry, just out of my curiosity. And then I chose to do my MD also in psychiatry, and that is how my journey began. Lovely. Thank you for sharing your journey with us. Can I ask you a few questions regarding mental health these days? These days, a lot of people, although they're aware कि mental health क्या होता है, but problem है कि बहुत myths है related to mental health और stigma भी है. जैसे मैंने काफ़ी अपने practice में सुना है कि दवाइयाँ addictive होती हैं या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं. What is your thought process on this? See, yes, when I talk about the world level, India अभी भी थोड़ा सा पीछे है in terms of awareness related to mental health. Yes. But I would say this thing is improving. The understanding is improving. Right now, I would say like in my practice, I see cases even like especially the younger people, like you know, younger millennials and Gen Z people. They come to me and they're like, hey doc, like I am going through this like I'm not sleeping for 2-3 nights, or like I'm facing this issue. Would I be depressed in the future, or is there a chance that I would get anxiety out of this, or do I need to do something about it? So such queries are also coming in, and I really see okay, the difference is there. Like people are now taking it you know, seriously and in a more positive and open way. So this is what I'm seeing right now. And I think psychiatrists and थोड़ा सा वहाँ पे ये भी stigma है कि जो बिल्कुल ही like the people who have lost touch with their reality, or like you know who are very severe conditions में ही psychiatrist के पास जा सकते हैं. And psychiatrist के पास जाओगे तो दवाइयाँ मिलेंगी ही. This is also a very old concept. Really? Yeah, it does not hold true in today's scenario. So in my clinical practice, I see all sorts of cases. बिल्कुल severe cases, I would say less than 10% होते हैं जिनको like to the extent like they are into extreme like violence, extreme aggression, extreme suicidal tendencies, who have need of admission and all of that. It's very less, like less than 10%. Rest of them, like yes, they might need medicines, but that also for a shorter duration, maybe 3 to 6 months. And alongside like some therapeutic work, psychotherapeutic work can help them like do great in their lives. Long term, long term, yes. Doctor, I have a question for you. मेरा सवाल ये है आपके लिए कि अर्ली वार्निंग साइंस क्या होती हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और then we can take help for it, क्योंकि lot of people they take help जब you know problem या situation out of hand हो जाती है. तो when is the right time to take help?
सो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि when do you need help, right? So इसमें ये है कि every day, most of the time, if you are productive enough, I would say, like, you know, you have your own काम के जो गोल्स हैं वो आप फुलफिल कर पा रहे हो, अपनी जनरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फुलफिल कर पा रहे हो, एंड जनरली यू फील ओके विद योर मूड, देन एवरीथिंग इज फाइन. इसके अलावा एनी चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, फंक्शनैलिटी और आपके इमोशंस जो है दे आर गोइंग अप और डाउन, बोथ द थिंग्स, दोनों में, देन यू नीड टू सी कि हाँ कुछ तो चेंज आ रहा है एंड इट इज डेफिनेटली putting an impact on my productivity, then that is the time when you should seek help and see someone. So basically productivity or functionality, and Yes. you're not being able to go by your routine on a Yes. how you used to be able Yes. to go about it. Yes. Okay, that's important. Another question that I'd like to ask you about is that बहुत लोग की लिंगो आजकल हो गई है stress, overthinking, I'm depressed, I'm anxious. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आजकल कंप्लेन करते हैं कि 7 o'clock के बाद whenever the sun sets कि मेरा माइंड बहुत ही हैवी थॉट्स लेके सोचने लग जाता है और उसके वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ या पाती हूँ. तो इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है और ऐसा होता क्यों है? पहली चीज तो कि आजकल ये सारे टर्म्स बहुत ही कैजुअली यूज होते हैं. इवन इफ यू आर फीलिंग सैड, यू नो, व्हिच इज पार्ट ऑफ योर एवरीडे इमोशन. आप पूरा टाइम तो अच्छे मूड में नहीं रह सकते. समटाइम्स यू आर न्यूट्रल, समटाइम्स यू आर फीलिंग लो. वो सब हमारा थोड़ा बहुत मूड फ्लक्चुएशंस आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ एंड दे आर नॉर्मल. बट आजकल क्या हो गया है कि इवन इफ यू हैव अ बैड डे, पीपल से ओके आई एम डिप्रेस्ड टुडे, और आई एम लाइक, इवन इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी इज नॉट ऑलवेज बैड, इट्स समटाइम्स गुड आल्सो. देन आल्सो इट्स कि मुझे तो एंजाइटी हो गई है, राइट, एंड ओसीडी हो गया है. डॉक्टर मनी, जस्ट वांटिंग टू नो कि ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ अब मेरे को हेल्प लेने की ज़रूरत है. हमें कैसे पता लग सकता है कि अब राइट टाइम है कि हम सपोर्ट ले सकते हैं? सी, जनरल गुड डेज, बैड डेज, ये सब पार्ट है लाइफ का, राइट? समटाइम्स यू आर फीलिंग ओके, समटाइम्स यू आर फीलिंग गुड, समटाइम्स यू आर फीलिंग लो, maybe anxious. Yeah. This is all normal, this is all part of life. Absolutely. Right? And also productivity wise also, some days you are feeling productive and others days you are not. But to see, like, if it is actually going towards something serious, then you have to identify just one thing. अगर हमारी productivity continuously for a significant duration of time impact हो रही है, then you should seek help. Then that is the time you should seek help. Okay. And not wait for the crisis to happen, because उस टाइम पे फिर ऑलरेडी चीजें इतनी सिवियर हो जाती हैं कि उसको ठीक होने में, then you to bounce time back लगता है. हाँ. to your normal thing, बहुत टाइम लग जाता है. Another thing that मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे जेनजीज आजकल ये टर्म यूज करते हैं छोटी छोटी बातों पे कि मैं तो बहुत ही स्ट्रेस्ड हूँ, आई एम रियली एंग्शियस, आई एम रियली डिप्रेस्ड, आई एम ट्रॉमेटाइज्ड. You know, this is a very general lingo which is used, but it's very, very scary because people who are actually OCD or people who are actually traumatized, उनको इतना हेल्प नहीं मिल पाता है. You know, तो आप इस पे थोड़ा elaborate कर सकते हो? I know, I can also see ये सारी चीजें बहुत कॉमन है आजकल. अगर आज मेरा थोड़ा सा मूड सैड है तो people will say कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, राइट? एंड अगर मैं एंग्शियस हूँ किसी चीज को लेके, मुझे तो एंग्जाइटी हो गई है. या फिर इफ आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू ऑर्गेनाइज थिंग, प्लान थिंग्स, सो मेरे को तो यार ओसीडी है, या फिर people also comment कि यार तू तो बिल्कुल OCD है, right? Something like this. I know it is unfair to the people who actually have this. I don't know what to say about it, but depression, anxiety, OCD, they are serious, like proper diagnosable clinical disorders. Yes, right? absolutely. And it is not a one day और एक moment का चीज नहीं है. If you are continuing to be in that state for a significant duration of time, and which is especially impacting आपकी overall productivity, आपकी functioning capacity, then yes, it is some like depression, anxiety or OCD, then it is diagnosed accordingly. Yes, Yeah. so one should not use it carelessly. Yes. And one should like stop using it for small things. Yes. Another thing is that a lot of people, youth, Gen Z, millennials, bordering millennials into Gen Z, वो कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती है. जो भी दिन में चल रहा होता है वो माइंड में मेरे को बार बार मेरे माइंड में रोटेट करता है, मैं रूमिनेट करती हूँ या करता हूँ. हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं
और क्योंकि बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि 7 o'clock के बाद इवनिंग जब शुरू होने लग जाती है तब बहुत ही एंग्शियस थॉट्स और डिप्रेसिंग थॉट्स मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। एक, ऐसा क्यों होता है, और दूसरा, हम अपने स्लीप हाइजीन पे कैसे फोकस कर सकते हैं? ओके, सो एज द डे प्रोग्रेसेस, जब हम शाम की तरफ बढ़ते हैं, यूजुअली क्या होता है कि हमारे डे टाइम के डिस्ट्रैक्शंस, वर्क कमिटमेंट्स, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब अब खत्म हो गई हैं। नाउ यू आर बाय योरसेल्फ। तो उस टाइम पे दिमाग में जो एक्चुअल थॉट्स चल रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोमेटिक थॉट्स। तो फिर वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आपको सुनाई देने लग जाते हैं, राइट? डे टू डे ब्रेन हमेशा चलता ही रहता है, देयर इज वन थॉट और दी अनदर ऑल द टाइम गोइंग ऑन इन योर माइंड। लेकिन अगर आपको उनका कंटेंट एंग्शियस है या फिर डिप्रेस्ड है, सो दिस मीन्स दैट you are actually undergoing something. ये thoughts ऐसे ही नहीं होते हैं. There is something going on in your life, maybe a stressor, maybe some thing where you need to work on, या फिर this can be one of the early signs कि आपकी mental health deteriorate हो रही है. That is why it happens. That is when the content of these automatic thoughts changes to worrisome ruminations, negative thoughts. ये तब होता है, right? And especially in the younger generation, if I say Gen Z जैसे हो गया, बहुत ज्यादा ना सोशल मीडिया प्रेजेंस, बहुत ज्यादा लाइक एक्सटर्नल वैलिडेशन सीकिंग, कांस्टेंट कंपैरिजन, ये सारी चीजें भी उस पर बहुत पिचिन करती हैं दैट आपको ना इतना डे टू डे चीजों में आई वुड से लोड चाहिए नहीं ब्रेन पे, बट आप दे रहे हो सेंसरी ओवरलोड, नो? यस, एंड यू डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट. आप उसको कुछ उसका कर भी नहीं रहे हो. एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूरा दिन आती जा रही है विच इज मेकिंग यू एक्सपीरियंस बहुत सारे इमोशंस, लेकिन आपको समझ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है, एंड इट्स क्रिएटिंग अ ओवरवेल्म सिचुएशन. इट्स लाइक अ कंप्लीट मेस दैट इट इज क्रिएटिंग. यस, एंड यू डोंट नो हाउ टू सॉर्ट इट, राइट? तो फिर वो पूरा फिर वो उसका थॉट कंटेंट हमारा चेंज होने लग जाता है. Anxious thoughts, ruminating thoughts, and then yes, it has impact on your sleep directly. इसके अलावा like जो ये sleep routine वाली जो चीजें हैं, हमारी जो normal circadian rhythm है, biological rhythm है, we are supposed to sleep when the sun sets, right? Exactly. लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं. उसमें being on the like phone or any other screen, बहुत ज्यादा लाइट का एक्सपोजर हो रहा है, तो ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा सोना है, रात है, दिन है, क्या है, व्हाट डू आई हैव टू डू, राइट? सो इसलिए फिर स्लीप इश्यूज भी हो रहे हैं. आपको डिलेड ऑनसेट ऑफ स्लीप्स, बहुत लोगों का तो स्पेशली यंगर जनरेशन में पूरा रिवर्सल है ऑफ स्लीप साइकिल. दिन में सोना, हाँ, पूरी रात जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं. दिस ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट. एंड अब ये सब चीजें हो गई तो इसकी वजह से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी और बढ़ गया. फिर आपका जो थॉट कंटेंट है वो और नेगेटिव और वरीसम और एंग्शियस हो रहा है. सो यू आर कॉन्स्टेंटली स्टक इन दिस लूप. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना टू हैव अ स्ट्रिक्ट स्लीप शेड्यूल. यस, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसी की भी लाइफ का. आवर ब्रेन इज द मेन इंजन ऑफ आवर बॉडी. हम उसको बस चलाते जा रहे हैं. अगर उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे तो उसका बर्नआउट हो रहा है. एंड अगर उसको रिपेयर का, रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा तो बर्नआउट हो रहा है. एंड दैट इज व्हाई बाकी के अगले मॉर्निंग जो उसको काम करने हैं उसमें इम्पेयरमेंट्स आ रही हैं. सो दैट इज व्हाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. Dr. Mini, these days in corporate culture and other cultures too, they send emails at night and they're like कि नहीं, रात को काम करना है. ये हमारे ब्रेन पे कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करता है? अगेन लाइक सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं. दे आर गोइंग टू बी द वे दे आर. यस, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एक इंडिविजुअल के लिए कि वो अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करता है. जी बिल्कुल. कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी. आपके लिए एक बैलेंस लाइफ प्रायोरिटी है क्योंकि ये मेरा वर्क टाइम है, ये मेरा फैमिली टाइम है, ये मेरा सोशलाइजेशन टाइम है, ये मेरा मी टाइम है. दैट अंडरस्टैंडिंग एंड दैट क्लैरिटी हैज टू बी देयर. फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन किस चीज के लिए प्रेशराइज कर रहा है. वंस यू हैव सेट दोज बाउंड्रीज, राइट, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. यू शुड नो कि हाँ ठीक है, मैंने ये करा है. इसके बाद फॉर एग्जाम्पल बॉस को रात में ईमेल मैंने रिप्लाई नहीं करा, राइट? हो सकता है कल मॉर्निंग में मुझे बोले कि नहीं करा, बट इट्स ओके. बोल ही तो रहे ना. एंड यू शुड लर्न टू बी ओके विद दैट ऑल्सो, सेइंग नो ऑल्सो. एंड दैट इज वेयर यू सेट योर बाउंड्री. स्किल, राइट? Yes, it's a skill. It's a skill, and you have to be, assertive in doing that if it is important for you, right? सामने वाला तभी समझेगा अगर आप अपनी वो बाउंड्री उसको बताओगे, and people do understand. Yes.
they do understand, because at the end of the day सब लोग सेम ही चीजों से तो go through कर रहे हैं ना, and people do understand, so you have to speak up for your own boundaries. All right, now let's get into the digital age and Gen Zs. So Gen Zs पैदा ही फोन और लैपटॉप के साथ हुए हैं, अनलाइक मिलेनियल्स जिनका थोड़ा मिक्स हुआ है कि उन्होंने बाद में ऑनलाइन वर्ल्ड को डिस्कवर किया है. ये कैसे इम्पैक्ट करता है इनकी मेंटल हेल्थ को? दोनों में जैसे अगर मैं यंग मिलेनियल्स की और जेन जी की बात करूं, दोनों के मेंटल हेल्थ आई वुड से सिम्टम्स तो मोर और लेस सेम है, कंसर्न्स लेकिन थोड़े डिफरेंट हैं. जैसे यंगर मिलेनियल्स आज भी थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा कल्चरल वैल्यूज को साथ में लेके करियर स्टेबिलिटी, लाइफ स्टेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सारी चीजों को वैल्यू करते हैं एंड उसी का ही स्ट्रेस है, राइट. वेयरएज जो हमारी यंगर जनरेशन है, जेन जी की अगर मैं बात करूं, उनका जो ज्यादा मैं देखती हूँ इंक्लिनेशन एंड इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी, वो online presence, social media face, presence, and a lot of comparison also comes in, validation seeking also comes in from there. And yes, the other aspects of it, like the social, like online bullying, harassment, all of this also comes in. And then the social relationships, which are also very digital these days, that is also another thing which is quite different in this generation. And again, in the end, both of them, if अगर दोनों चीजें ठीक चल रही हैं तो चल रही हैं, otherwise again stress, anxiety, यही सब they are increasing because of the same reasons. So both of them do face different kinds of struggles, but Gen Z ज़्यादा pressure में है in terms of because of the digital influence on them. आई थिंक दोनों का कंपैरिजन नहीं है. अच्छा. जो मिलेनियल्स हैं उनके अपने स्ट्रेसेस हैं, उनका अपना इम्पैक्ट है. जेन जी का अपने स्ट्रेसेस है, अपना इम्पैक्ट है. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन जो परसीव्ड इम्पैक्ट है वो तो दोनों के लिए इट इज एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेस. जैसे आपने बोला मिलेनियल्स जो होते हैं उनको वर्क वाइज, फैमिली स्टेबिलिटी की एंजाइटी ज्यादा रहती है, और क्या क्या दे गो थ्रू व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जेन जी गोस थ्रू? व्हाट इज टिपिकल ऑफ अ जेन जी mental health experience? Again, like अपना they are trying to establish themselves. बहुत early age में उनको बहुत wide exposure मिल गया है, right? Today they can do anything, right? Yes. लेकिन यही चीज chaos भी create कर रही है because they don't have a direction and they don't know what to do. Like there are too many options to choose from. Yes. So वो चीज भी एक chaos create करके impact कर रही है. And then when you are constantly on social media, आपके mind में constant comparison तो चल ही रहा है ना with the other people. That is an additional stressor कि इससे कैसे कोप करे. जो अपनी लाइफ के नॉर्मल डे टू डे स्ट्रेसेस तो हैं ही, लेकिन वो कंपैरिजन की वजह से कि अच्छा ये इसका ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा और मैं ऐसा वो. एंड देन सेकेंडरी टू दैट बहुत सारे बॉडी इमेज इश्यूज भी उस पे आ रहे हैं. एंड दिस थिंग इज इम्पैक्टिंग उनका पूरा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत इम्पैक्ट मैं देख रही हूँ जो आता है इन माई प्रैक्टिस. या तो व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट? हम कैसे इसको, मतलब क्योंकि हम डिजिटल मीडिया को तो इरेज नहीं कर सकते, वो एक पार्ट ऑफ आवर लाइफ हो चुका है. व्हाट इज द वे आउट कि हम, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो, बट हम उसको ऐसे वे में यूज कर रहे हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सके? So see, like digitalization of anything अपने आप में बुरा नहीं है. Of course, like it is there to aid us. It has helped us in so many fields. बिल्कुल. हम आगे जाएं, right? Again, it depends on the individual. How do you want to use it? Again, आपको एक वहाँ पे भी एक लिमिट सेट करनी है, क्योंकि मैं ठीक है, आई एम यूजिंग सोशल मीडिया, आई एम डूइंग दिस, बट साइमल्टेनियसली मेरी अपनी जो और प्रायोरिटी वाली चीजें हैं, मेरी अपनी सेल्फ इंडिविजुअल ग्रोथ है, एकेडमिक ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो भी एट द सेम टाइम पैरेलल चले, अच्छी चले. दैट इज वेयर यू नीड टू डिवाइड योर टाइम, डिवाइड योर अटेंशन एंड सेट बाउंड्रीज फॉर दैट. So you need to prioritize basically. Yes. And you can't let it like influence your life so much that the other parts of your life is neglected. Yes, they should not be neglected. Yes, that is the idea. All right, let's move on to relationships, which is a very interesting topic because ऐसा कभी हुआ नहीं है कि, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का टाइम जो था वो वन पर्सन या टू पीपल को मीट करते थे, दे यूज्ड टू डिसाइड इमीडिएटली कि ठीक है मेरे को इससे शादी करनी है. बट आजकल तो डेटिंग एप्स है जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे घोस्टिंग है, ब्रेड क्रम्बिंग है,
सिचुएशनशिप है, मोनोगमी है, नॉन मोनोगमी है, तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को एक तो कैसे अफेक्ट करता है, दूसरा हमारा ब्रेन क्या चाहता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स? ओके, एक्चुअली बहुत सारी जो रिलेशनशिप ट्रेंड्स अगर हम देखें आजकल डेटिंग में चेंज हुए हैं, ऑफ कोर्स, लाइक नाउ चेंज नहीं हुए हैं, आई वुड से जो अभी की जो यंगर जनरेशन है वो बहुत अवेयर है, वो उस बारे में बात कर रही है कि अच्छा ये हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, राइट? सो दे वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड दे डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट, राइट? They're experimentative. They're experimentative and which makes sense also कि हम वही पूरा ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल चीजों में क्यों जा रहे हैं, राइट? सो इट इज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मोनोगमी हो गया, नॉन मोनोगमस रिलेशनशिप हो गए, वन नाइट स्टैंड्स हो गए, या फिर सिचुएशनशिप्स, राइट? सो ये सब चीजें दे आर नॉट गुड नॉट बैड, आई वुड से इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल. Yes. मेरे लिए अगर वो वर्क करता है, इट्स द बेस्ट थिंग, Okay. राइट? Yeah. सो इट्स नॉट कि उनमें इनहेरेंटली वो कोई चीज अपने आप में बुरी है, नो, लेकिन वो मेरे लिए बुरा है, अच्छा है, दैट आई हैव टू डिसाइड ऑन माई लेवल, राइट? इसमें हर टाइप के रिलेशनशिप के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनोगेमस रिलेशनशिप देखें, इट गिव्स यू स्टेबिलिटी, इट गिव्स यू आई वुड से सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो सब आपको मिल रहा है. बट एट द सेम टाइम someone can feel frustrated also कि हाँ, you have to be with this person all throughout. Stuck people feeling, yeah. people grow with time, right? Yeah. And उसके बाद वो एक obligation नहीं होनी चाहिए, it should be a choice, right? कि अभी भी like okay, the other person is also growing with me, हो सकता है वो grow करके different directions में चले जाए, लेकिन जो monogamy है वो क्या है कि नहीं, आप जहाँ भी जाओ आपको साथ ही रहना है. That can create a lot of frustration and then mental health issues after that, right? So सिमिलरली अगर हम जेनजी की बात करें, लाइक इफ यू आर एक्सप्लोरिंग अदर सिचुएशनशिप्स हो गए, वन नाइट स्टैंड्स हो गए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर वो आपको नॉन मोनोगेमस रिलेशनशिप आपको सही लग रहा है, आपके लिए ठीक है, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, जैसे कि आपका करियर ग्रोथ हो गया, या फिर आपकी जनरल प्रोडक्टिविटी हो गई, या फिर आपका सेल्फ केयर, सेल्फ एस्टीम अगर उससे इम्पैक्ट नहीं हो रही है, देन दैट इज बेस्ट फॉर यू. So like you mentioned, whether it's a monogamous relationship or a non-monogamous relationship, it really depends on the person, how well or how okay they are with that kind of a relationship. But पता है क्या होता है कि अगर कोई non-monogamous relationship में सपोज हो, तो जिस पार्टी के साथ वो रिलेशनशिप में है मल्टीपल, तो ऐसा हो सकता है कि उनका ट्रस्ट ब्रेक हो, दे माइट फील बिट्रेड. तो उसमें उस पार्ट दैट पर्सन हु इज नॉन मोनोगमस माइट बी ओके इंटरनली, बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल हु माइट फील दैट पर्टिकुलर सेंस एक्सपीरियंस? सो जैसा कि मैंने कहा है ताशा कि इट इज अ इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ थिंग्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सिचुएशनशिप है वो अपने आप में ही बहुत वेग है, राइट? You don't know what you are doing with the person, but you are doing something with the person, which is not a committed relationship, right? So वहाँ पे does not matter कि कैसा रिलेशनशिप है, आपको वहाँ पे 2-3 चीजें क्लियर रखनी है बस. You keep on communicating जो आप फील कर रहे हो, wherever you are, even in that situationship, कि आज मैं यहाँ हूँ. कीप द कम्युनिकेशन ओपन विद योर पार्टनर एंड सी कि वो भी उस सेम पेज पे है या नहीं है. सेकेंड इज ट्रस्ट. यस, अगेन द कम्युनिकेशन सॉल्व्स हाफ ऑफ इट, दैट ओके whether I trust this person or not, and then like you know, learning to manage your own things and growing together, that is what should be the basis of the relationship. कहीं पे भी हो, बस आप ग्रो कर रहे हो, you are not feeling stuck. person के साथ भी, emotionally भी, otherwise also. and उसमें communication ही है जो सबसे major role play करता है. अगर आप वो situationship को भी एक बाउंड्री सेटिंग और उसको डिफाइन कर लोगे ना कि इसमें भी हम ये कर रहे हैं, इट बिकम सो मच इजियर. ट्रांसपेरेंसी. यस, इट बिकम सो मच इजियर. सो अभी ये रिलेशनशिप्स यंगर जनरेशन में इसलिए क्योटिक है क्योंकि लोग वो बाउंड्रीज नहीं बना पाते हैं एंड उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं दैट दिस इज व्हाट आई वांट राइट नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. तो अगर आप वो बाउंड्रीज बना लोगे, कम्युनिकेशन ओपन रखोगे,
It's easy. Yeah, and it's so important now to protect each other's mental health just because you have decided something for your life. अगर आप ट्रांसपेरेंट और ओपन रहोगे दूसरे इंसान के साथ तो आप एक चॉइस देते हो उसको एंड दैट पर्सन हैज द चॉइस टू नॉट गेट हर्ट. Yes. तो आई थिंक एज अ कम्युनिटी हम सबको माइंडफुल होना चाहिए कि हम एक दूसरे को हर्ट ना करें एंड गिविंग अ चांस टू द अदर कि हाँ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. Yes. So जो आप मेंशन कर रहे हो लाइक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जी. सामने वाले को इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने का पूरा राइट है, राइट? Yes. लेकिन वो अगेन कम्युनिकेशन आपको ओपन करना पड़ेगा. Yeah. लेकिन अभी जो मेरे पास जितने भी यंगस्टर्स आते हैं, कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. हमें पता ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, राइट? एंड अगेन वो बहुत इमोशनली लेडन चीजें होती हैं. तो पहले तो क्या चाहिए और बोलना क्या है, बोलना ये है तो कैसे बोलना है, राइट? सो दिस इज वेयर दे नीड सम सपोर्ट, सम हेल्प, Some guidance. yeah, which is again like you can go to anyone for this help, right? Again, therapists are available, general counselors are available. Please take relationship advice. I always say people, no matter कि आप किस stage पे हो in your relationship, if you're feeling stuck, seek some Kind of support. Yeah. support, and Yeah. it is going to benefit you. Yeah. It's not about कि relationship कैसे चले, it's about आपका perception क्या है, आप Yeah. कैसे grow कर रहे हो as a person, Yeah. and आपकी understanding कैसे better हो रही है. Yeah, but it's much better I think to approach a therapist or a psychiatrist because क्या होता है कि वो एक नॉन जजमेंटल स्पेस होता है और एक ऑब्जेक्टिव स्पेस होता है जहाँ पे कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप सही हो कि गलत. वो बस ये बताएगा कि what is good for you probably based on what you are saying. So I think it's very important to go to a non-judgmental space where somebody will understand you from your perspective. Dr. Mini, I would like to ask you, when you practice, what is the personal and professional advice that you give to your patients on a general basis? Doesn't matter what client it is. कि आप उनको अपने तरफ से क्या बोलते हो regarding keeping good mental health? ओके, सो अगर हम पर्टिकुलर किसी क्लिनिकल सिम्टम्स या किसी डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो उस पे तो हमारी अप्रोच इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हाउ द Yeah. इंडिविजुअल इज. लेकिन ऑन डे टू डे जनरल बेसिस अगर प्रिवेंटिव मोडालिटीज की मैं बात करूं, सो आई ऑलवेज टेल माई पीपल दैट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आपका सेल्फ वर्क रुकना नहीं चाहिए, विच मीन्स कि आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को सुनो, उनको इग्नोर नहीं करो, राइट? सुनो, जितना उनको सुनोगे उतना आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. एंड वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स से एक्चुअल गुड एंड प्रोग्रेसिव बिलीफ्स में वो टर्न हो जाता है. तो वो सेल्फ वर्क यू हैव टू कीप डूइंग, नो मैटर आप अपनी लाइफ के किस स्टेज में हो, आपको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं है. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप डूइंग, राइट? एंड सेकंड थिंग, trust your instincts. Right? If your body, your mind is telling you to do something, please go for it. Yeah. अपने खुद के मिस्टेक्स करो, अपने खुद के फेलियर से सीखो एंड ट्राई इट आउट. जरूरी नहीं है किसी और के लिए वर्क नहीं किया तो आपके लिए भी नहीं करेगा. ट्राई इट आउट, then learn from it, then decide whether to do it or not. Yeah. Right? And that is how you progress in life. Regret is always better than failure. Right? I'm so glad you touched upon that because focusing on our gut feeling actually does give us direction, and we tend to overlook it क्योंकि हमें इतने suggestions आते हैं यहाँ से वहाँ से कि we forget कि हमारा inner voice क्या कह रहा है हमें. So thank you for touching on that. One question more that I would want to ask you is कि आप अपने personal life में क्या ऐसे practices करते हो? बिकॉज देखो स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में आता है, तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हो? ऐसे क्या क्या चीज़ें आप टेक्निक्स आप अप्लाई करते हो जिससे आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रखते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस? या सो what I believe in is कि आपको अपनी mental health, it's again ये भी एक lifestyle ही है. You have to change your mindset to be in a healthy mental health space. Yeah. Right? So मैंने like in 9 years of my practice, 9 years of my work in the mental health field, मैंने यही सीखा है कि आपको अपनी ना चीजें, the way you think, the way you perceive, आपको वो life ही पूरा change करते रहना पड़ता है. You have to learn to grow your life, which is more mentally satisfying for you. Okay. That is what you have to do. All right. लेकिन if you are a
बिगिनर तो आपको मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन लाइक सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अकेले बैठे हुए हो, अगेन सो मच ऑफ नेगेटिविटी सराउंड्स यू. Yes. Right, we are in the end social Beings, animals, yes, right? yes. So we thrive when we are in the social settings. Yes. So जैसे अभी आपने बोला कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया है, जी. that is also a big reason of stress and anxiety. Yeah. So surround yourself with people who mean to you, socialize time to time. That also gives you so much of positivity in your life, Yes. right? Especially younger people, digital age है, dating भी ऑनलाइन ही चल रही है, interactions भी ऑनलाइन ही चल रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात करनी ऑनलाइन ही चल रहा है. वो भी अगेन स्ट्रेस एंजाइटी कॉज करता है. सो सोशलाइज इन पर्सन, फेस टू फेस, ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो फोकस ऑन दैट. Yeah. Right, and ultimately, like, you have to work towards the kind of life you want, which is satisfying for you from within. Yes. Okay, for example, like after 9 years of in my mental health journey, finally I've been able to create a life for myself where सुबह उठ के मी, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर हु इज 1 year old, Yes. हम तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर पाते हैं विदाउट एनी हरी कि हमें कहीं जाना है. लाइक वी हैव अ क्वालिटी टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ द डे जहाँ हम आराम से 2 घंटे लगा के बस नथिंग, वी आर डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, सिटिंग अराउंड, डूइंग समथिंग. दिस इज व्हाट लाइक a fulfilling life means to me, right? Yes. A slow living. Yeah, a slow Yeah, living. yeah. That is like I like to start my day slow. Yes. Rush में नहीं कि अरे ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. Yes. Right. So this is mental health for me. Yes. This is what I have created for me. That's such a beautiful thing you've touched on. Yeah. Actually, because we all need to slow down. This hustle culture is just making our brain do multiple tasks, but our brain is not actually made to do multiple tasks at the same time. Yes. 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 So again, it depends on people to people. Yes. But you have to identify कि आपके लिए क्या work करता है. And again, it's a everyday work. You have to work towards the life you want for yourself. Yes. So how do you create a fulfilling life and Yes. what matters to you? Yes. Yes, these are very important things and we should keep asking ourselves ना this question. Yes. कि मेरे को क्या मैटर करता है, मेरे लिए क्या important है. जैसे आपने बोला सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बहुत important है, अपने गट फीलिंग से इन टच रहना बहुत important है. आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जेनजी को भी और हमें भी People of every age. Every मेरे age. पास जितने भी लोग हैं, they are of different, like especially 15 to 45 years में मेरा therapeutic work है. But otherwise I see people all across the ages. Yeah. लेकिन हर किसी में ये common factor है कि पता ही नहीं है क्या चाहिए. So know that. What do you want? आपके लिए क्या important है? आपकी क्या priority है? तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाएंगे ना. और अगर वो चीज में आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प. Yes. There is no harm in it. Yeah, right. they're not going to bite you. Yeah, if like no one can know everything, right? Yes. So that is why there are professionals for that. Yes. So if you don't know, Yes. just accept that, admit that, and then work on it. बहुत लोग बोलते हैं कि मैं भी काउंसलर हूँ क्योंकि मैं एडवाइस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, Yeah. which is very harmful actually. You know? And it's I've seen this happening when in the school I was working in. Otherwise also, people will just give advice. Yes. It's a complete process. Yes. Of, Let me give you a funny example. Yeah. Like I see teenagers also, right? Yeah. So parents आते हैं कि मैम इसको ये प्रॉब्लम हो रही है. I mean, हाँ. बच्चे का बिल्कुल हालत खराब हो रखी है, वो कुछ हाँ. नहीं कर पा रहे हैं, एंग्जाइटी चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, क्लियरली क्लिनिकली डायग्नोजेबल डिप्रेसिव सिम्टम्स चल रहे जी. हैं. एंड पेरेंट्स आर लाइक ये टाइम से उठता नहीं है, ये टाइम से वो नहीं करता है. ठीक है. हाँ. सो मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, मेडिकेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन आपके बच्चे को जो चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए, थेरेप्यूटिक सपोर्ट चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे समझाने में प्रॉब्लम हो जाती है कि थेरेपी क्या होता है. सो आई बहुत बार आई हैड टू यूज अ टर्म कि जैसे काउंसलिंग होती है ना, हाँ. तो वो कराने की जरूरत नहीं, काउंसलिंग तो हम ही बहुत कर देते हैं इसकी. हाँ. उसकी जरूरत नहीं है, हम Yeah. इसकी काउंसलिंग कर देते हैं. yeah, sometimes I want to. I get so tired. I'm like, Yeah. you cannot advise if you're not counselor. हमने क्या 8 साल पढ़ाई की है. I mean, so I Yeah. don't know. So बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार उन सिचुएशंस को नेविगेट करना. हाँ.
So yeah, so this is what I was saying. People use like counseling and therapy term very loosely कि ये तो हम भी कर देते हैं. They हाँ. think कि giving advice is counseling. It's a process. But it's not. It's Yeah. not, right? Yeah, it's a scientifically studied process जो हम लोग जिसने ट्रेनिंग ली है हमने. So Dr. Mini, you know, a lot of psychiatrists, they only prescribe medicines mostly. And it's very refreshing to know that you are a combination of a psychotherapist and a psychiatrist. Can you just elaborate a little bit about the journey that you've gone through and why you decided to do this? Yeah, so yes, like कुछ हद तक like this is true. Actually हमारे इंडिया में ऑलरेडी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं और उसमें से जो साइकाइट्रिस्ट हैं सो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, राइट. एंड यस, जो ट्रेडिशनल साइकाइट्री है इट्स मोर टुवर्ड्स मेडिसिन ओरिएंटेड, डिसऑर्डर्स हैं और उसका ट्रीटमेंट है, राइट. दैट इज हाउ इट इज. दैट इज हाउ आई लर्नड इट ऑल्सो इन माई MD जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी फ्रॉम इभास, विच इज लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. सो वहां पे भी जाके आई चोज दैट प्लेस कि मुझे वहां पे कुछ डिफरेंट लर्न करने को मिलेगा, नॉट बी ट्रेडिशनल साइकियाट्री प्रैक्टिस, ठीक है, नॉट दी ट्रेडिशनल साइकियाट्री प्रैक्टिस. लेकिन जब मैं वहां पे थी आई फाउंड कि यहाँ पे भी आई एम फीलिंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड. वहां पे एवरीडे 2500 लोगों की OPD होती थी, which which like 7 to 10 people used to manage. That's very overwhelming. Yeah. So in 2 to 3 hours we were supposed to see like 100 people. So it became very overwhelming for me because to me mental health हमेशा like it's not this, it's like this. There is so much more to mental health. Yes. So that is why I decided कि सिर्फ psychiatrist रह के I'm feeling limited. I need to add on different things to my skills so that I can help people better. So that is why I started my journey to learn various like psychotherapeutic modalities. So I enrolled myself in this program with like Beck's Institute USA. So I learned CBT from there, cognitive behavior therapy. And after that, again, like I started practicing that. Like I practiced it for 2 good years. फिर मुझे लगने लगा कि इसमें इसकी भी थोड़ी limitations है, that we are not touching upon the emotional aspects of it. We are not touching upon like the traumas as such. So then I found this organization, EFT-MRA, which is a UK-based organization. Then I learned EFT from there. That helped me in upgrading my skills, and plus I could see कि बहुत सारे लोगों का inclination उस तरफ है, तो I could help more people that ways. And to your surprise, like I don't know it, you will find it fascinating maybe. I am a pranic healer also. I am a level 3 certified pranic healer also. So spirituality healing is also one of my fortes, and I have seen especially people who are in the older age group, let's say 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं, they connect with that more. So again I felt more empowered कि मैं अब ठीक है इस population को भी I can help. So you have your entire toolkit with you ready. Yes. So ये है मेरी like 9 years की journey of upgrading myself and at the same time helping more and more people, right? And I always think कि आप इसमें और भी grow कर सकते हो. Like mental health has no limits. Like you can keep on adding to it. Keep learning. Keep keep growing. That is how it is for me. Yeah, but that's really exciting. Pranic healing, and then you know, EFT, and then all the modalities that you've done must have like made you grow so much as a person than just like traditional psychiatry. You must have like understood different avenues and how to become a more wholesome person yourself. Yes, of course, that has helped me. And at the same time I can help a lot of people also with this. So अब क्या हो गया, बहुत ही client centric approach हो गई है. Whatever the person needs, give the person that. So अब सिर्फ वो symptoms और disorder और diagnosis मुझे treat नहीं करना है. I'm helping the person heal like पूरा as a whole. So that is what it is. That is how I practice. That's really refreshing. I think I hope more people do that. I think you're one of a kind who's doing that, because mostly psychiatrists just like prescribe medicine and then they refer to the psychologist, right? I told you like it's a limitation based on doctor-patient ratio as well. Right? जो कि बहुत बड़ा gap है हमारी country में. But still, again, of course, like you know, coming from a medical background, it gives me an edge.
Yeah. बहुत सारी चीजें हैं. Again, medicines बहुत सारे cases में they are must, they are required so Required, much, yeah, and yeah. उसी से ही हमारा progress होता है. So I'm not biased towards anything. Again, client को क्या चाहिए, उसकी क्या need है accordingly, but I just have a platter to choose from. Yeah, That is how that's it is. amazing. Yeah. That's amazing. Thank you so much for joining our podcast. It was a pleasure to have you, Dr. Mini, here. Yeah. Same here, Hitashita. Thank you so much for having me. Yeah. Thank you. Done.